ओ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Dear devotees, you are all welcome for continuity of our Bhakti Vedanta study of 10th canto. We are in the last 98th chapter. The par excellence, super excellent, worshipable and sweet loving position and pastime of Lord Sri Krishna. Yesterday, the portion which we discussed is the beauty of the Dwarka Dham, which is one of the 7 Puris where Lord Krishna eternally reside. In the Puri, we have the beauty of the palace or the palaces, then beauty around the palace in the city of the 4 divisions of the protective army, and then the description of the beautiful water reservoirs for water sports for Lord and his queens, the clean water rivers and even the ocean. And then we discuss the verse 24 to, verse 14 to 24. Sukdev Goswami is describing the Prem Vaichitya, which is the one of the 4th aspect of Vipralambha, or the separation. And the definition is, though one is present, one in the presence of his beloved is so much absorbed in the loving sentiments that he becomes almost forgetful of the presence of his beloved and speak as if intoxicated or speaking in sleep. And that talk of a person, lover, is called Prem Vaichitya. So the queens of Dwarka during war pastime are in the palace. When they were showing this Prem Vaichitya,
There are 10 say some birds, some say even wind coming from Malaya Hill mountain, swan, kurari bird, clouds. They have all these different objects have their nature, and they are comparing their nature with their own nature in separation from Krishna. So this 10 verses of Prem Vaicitya, in which 10 items are there, and sometimes they are simply thinking of them and discussing among themselves, or they are talking to those different subjects about their pitiable condition, and they are comparing their own condition with them. Then the verses describe the good luck or the fortune of the queens of Krishna. They are all Nitya Siddha, or eternally liberated associate of Lord Sri Krishna, but some they have performed the austerities of always thinking Krishna as their husband and desiring to massage his lotus feet. And then there's a description of Krishna. So now we are discussing Lord Krishna as an example of an ideal household, as a ideal householder. So these are the verses 28 to 30. So there is also the glories of the Yaduvansis and queens of Krishna. This is what we have discussed. So okay, this is what I recaptured what we have discussed yesterday in summary. अब कल आपका कहाँ प्रवास था? हाँ? आधा घंटा ही तो नहीं, माफ नहीं, पीछे इसको कहते हैं प्रवास विचित्र। ये प्रवास में जब होता है उसमें पागलपन होता है, वो बात कर रहे हो। अब प्रवास में थे ना कल, एक छोटा प्रवास, ये छोटे प्रवास वाला है, एक दिन गया था। एक बड़ा प्रवास होता है महीने वाला, उसको क्या पूर्ण कहते हैं। कल नाम हमने पढ़े थे, पूर्ण प्रवास के बाद मिलना। सो हम पढ़ रहे हैं वर्ष नंबर 29। आस्थितस्य परम धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिना आसन् षोडश सहस्रं महिष्याश्च शताधिकम्। आस्थितस्य, आस्थित रहकर, परम धर्म कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण जो सबको आकर्षण करते हैं, उन्होंने परम धर्म का पालन किया। कहाँ? गृह मेधी नाम, अपने घर परिवार में रहकर। वैसे मेधा कहते हैं बुद्धि को, मेधा बुद्धि को कहते हैं, जिसकी बुद्धि घर के काम में लगी हो, वो हो गया गृह मेधी। और इसी को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में उपयोग होता है। जब युधिष्ठिर महाराज देवर्षि नारद को कहते हैं मादृशो ग्रह मूढ़ धी, ये 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में पहला ही श्लोक है। मेरे जैसा ग्रस्त जिसकी बुद्धि घर में लगी हुई, अटकी हुई है। मूढ़, धी का मतलब, मूढ़ का मतलब अटकी हुई, धी का मतलब बुद्धि। तो ग्रह मेधी में भी ये मेधा बुद्धि को कहते हैं। मेधा बुद्धि को कहते हैं जो घर गृहस्थी में अटकी हुई हो, उसको सकारात्मक कहते हैं। यहां कृष्ण जो है ग्रह मेधी, ये सकारात्मक है, क्योंकि ये परम धर्म ग्रस्त का निभा रहा। किसके साथ निभा रहा है? 16,000 आसान, षोडश सहस्र, 16,100 रानियों, महेश्य,
महर्षि की उत्पत्ति बड़ी अद्भुत है। वैसे महर्षि भैंस को कहते हैं सामान्य भाषा में, संस्कृत में महर्षि भैंस को कहते हैं। तो इनको रानियों को महर्षि कैसे कहते हैं, इसका भी कोई उत्पत्ति है। च शता अधिकम, ये शता अधिकम का मतलब 100 के बराबर थी भक्ति में, 100 से ज्यादा सेवा में भगवान के साथ धर्म का पालन कर रही थी। अब इसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद के शिष्य ने, वाइल फुलफिलिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजन, परम धर्म, हाउस होल्डर, गृहस्थ का धर्म, कृष्णा मेंटेन मोर देन 16,100 wives. After having described the glories of the Yadavas with all the Lord's sons, when he become householder, he now repeats this. माने पहले ये बताया गया है, दोबारा सुखदेव गोस्वामी रिपीट कर रहे हैं। तो दिस सब्जेक्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ही वॉज सिचुएटेड इन मोस्ट एक्सीलेंट धर्म ऑफ हाउस होल्डर। अब मोस्ट एक्सीलेंट धर्म क्या है हाउस होल्डर का? सिंस ही इज द शेल्टर ऑफ ऑल आश्रम, भगवान तो सारे आश्रमों का आधार है। ये मेरा ये नहीं चल रहा है, इसका वही समस्या है। कदम आपका चालू है क्या? अभी तो चल रहा है लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, सो अब एक श्लोक है जो लिया गया है विष्णु पुराण से कि गृहस्थी का धर्म से ग्रहाय ग्रहस्थायाम तेन वही वरम तेम चई वरम। गृहस्थ इसलिए महान है क्योंकि वो 3 अन्य आश्रमों का पालन करता है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, सन्यासी को दक्षिणा देता है, वानप्रस्थ को उसके जीवन आजीविका देता है। तो इसलिए गृहस्थ धन्य है, वराम श्रेष्ठ है, क्योंकि चारों आश्रमों को जन्म भी देता है और चारों आश्रमों का पालन भी करता है। तो ये श्लोक विष्णु पुराण का है। Those who are sannyasis, vanprasths and brahmacharis are all dependent on grasthas. Thus it is the best. Vishnu Purana. Or this was the best dharma because through it he could chiefly implement his goals. He was Swayam Bhagavan who appeared in order to display his unlimited powers, or he attracted everyone's heart, Krishnasya, by the sweetness of performing those dharma. Instead of just sometimes two is seen. This makes some distinction. He had 8 principal coins mentioned in the next verse and the 16,100 others. So, Grasth Dharam, now the verse number 29. ताशां स्त्री रतन भूतानाम अष्टौ याः प्रागुदाहृता रुक्मणी प्रमुखा राज्ञा तदपुत्राश्चानो प्रवाश्च। ताशाम उन 16,108 में से स्त्री रतन भूता नाम, स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ पूजनीय जो थी, अष्टौ या प्राग उदारत, उनमें से 8 प्रमुख थी और उन 8 में भी रुक्मणी प्रमुख राजा महाराज रुक्मणी उनमें प्रमुख थी और तत्पुत्रास उनके पुत्र एक के बाद जो हुए उनका मैं वर्णन करूंगा। तो ये 8 रानियों के नाम आपको याद हैं? आप पढ़ के आए पहले।
ये तो उत्तरार्ध के दूसरे ही अध्याय में है। 8 रानियों के नाम बताइए। रुक्मणी, सत्यभामा और जामवती, ये तीनों समंतक मणि के साथ जुड़ी हुई विवाह है। इसके बाद कालिंदी, चतुर्थ पटरानी। उसके बाद सत्या, ये नागनजिती है, और सात सात बैलों को नथ के लाए थे। उसके बाद मित्रविंदा, उज्जैन से, अवंतिका की, और अनुविंदा और उनकी बहन, ये भी अपहरण किया। लक्ष्मणा और भद्रा, लक्ष्मणा और भद्रा एक मदर देश से है और एक केकई देश से है। एक मदर देश से और एक केकई देश से। ये है 8 रानियां, और इनमें मुख्य है रुक्मणी। Among the best of the women were the 8 principal queens, they and their sons previously described in order. Next verse. 31 to 38, descendant of Krishna. एकैकस्यां दश दश कृष्णो जग्नत् आत्मजान् या यावत्यात्मनो भार्या अमोघ गतीश्वर। एक श्लोक रह गया क्या? एक श्लोक रह गया मुझे लगता है, कुछ रह गया ले लग रहा है मुझे। ये आस्तिता 29 हो गया। हाँ, एवं वेद, तो इसका मतलब इससे पहले भी एक पढ़ना है ना, यही आखिरी। हाँ, पहला यही है। एवं वेदोदितम धर्मम अनुतिष्ठम सताम गति ग्रहम धर्मार्थ कामान मोहो चादर्श्यत पदम। एवं वेदोत्तम, वेदों में जैसे बताया, वेदोतितम मतलब वेदों में जो बताए हुए धर्म है, अनुष्ठान, उनका अनुष्ठान किया, सताम गति, जो जिससे भक्तों की गति प्राप्त होती है, सताम भक्त को कहते हैं। सत्य का मतलब भगवान, और जो सत्य के पीछे चले वो सताम, वो भक्त। तो सताम गति, और ग्रह धर्मा अर्थ, और ग्रह घर में रहते हुए धर्म अर्थ काम तीनों को अच्छी तरह से पूरा किया। और च च अदर्श्यत गत पदम, अदर्श्यत पदम, आदर्श्यत, आदर्श स्थापित किया। Thus, observing the principle of duty enunciated in Veda, Lord Krishna, the goal of saintly devotees, Satam Gati, repeatedly demonstrated, जो लास्ट वर्ड अभी हमने पढ़ा, demonstrated, how one can achieve at home the object of dharma, artha, and kam. Krishna showed that one's home can be place, padam, sthanam, for achieving dharma, artha, and kam. But that is not actually the goal, speaking in a more advanced spiritual. Having described Krishna's activity, which clearly display the pastime nature, Sukhdev now in a similar manner describe how he gave happiness to all by being absorbed in Vedic Dharma, the shelter of the devotees, absorbed in his pastime. He is also Satam Gatim. He is also constantly engaged in dharma like sacrifices prescribed by the Vedas. He showed the household goal of dharma, artha, and kam. He taught this to others, since he is also the shelter of the person dedicated to the dharma, as much as he is the shelter of the person absorbed in his pastime. इसका 2 लाइनें जो आखिर है, इसमें ऐसे लग रहा है कि भगवान जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं उनका भी आधार है, और जो मात्र इसके लीला में मग्न रहते हैं उनका भी आधार है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों वालों का आधार है, ऐसे लग रहा है यहाँ कि भगवान दोनों के लिए आधार है।
Though fixed in dharma, he delivered others by teaching dharma. स्वयं का धर्म का पालन किया और दूसरों का उद्धार किया. By his own conduct. In the way described, he performed dharma prescribed in Veda. He was the goal of the devotees, delivering bhakti by his mercy to the devotees. भक्ति का भी भगवान ने, देखो कब भगवत गीता का उपदेश कब दिया? जब द्वारका से आए ना. तो इसका अर्थ है कि जब गृहस्थ में रहे थे तब उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया कृपा करके भक्तों के लिए. तो भगवत गीता का उपदेश तो तभी दिया. और उसके बाद उद्धव को उपदेश दिया, वो भी तो वहीं द्वारका में भी दिया है. तो इसका मतलब धर्म की स्थापना के लिए जो दो मुख्य उपदेश भगवान के हैं, भगवत गीता और उद्धव गीता, ये गृहस्थ आश्रम में रहकर दिए. और ये दोनों धर्म जो है ये पहले वालों के लिए, किसके लिए है? ही हैज द गोल ऑफ द पर्सन डेडिकेटेड टू धर्म. और जो वृंदावन का धर्म है, फॉर दोज हु आर एब्सॉर्ब्ड इन लीला. ऐसा लग रहा है कि वो जो भी धर्म है प्राय वो ऐसे है कि गृहस्थ में रह के दिया है, जो सामान्य लोगों को धर्म के रास्ते में चलाने के लिए है. और जो धर्म अपने आचरण से वृंदावन में दिया है वो मात्र constantly performing dharma and constantly the goal was given happiness to the devotees, personal dedication. By this he shows to be attained by them, or the goal was to give happiness to his devotees. He constantly performed dharma and constantly showed the goal, muhu. This is to emphasize showing dharma. तो ये दो क्या कैसे सिखाया धर्म? तो अपने उदाहरण से सिखाया. जैसे नारद ने जाकर सब घरों में देखा गौदान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे जो है ये धर्म है. और फिर शिक्षा से दूसरों के लिए दिखाया और भक्ति भी दिया. 29 हमने पढ़ लिया और 30 भी पढ़ लिया ना. अब 31 में जा रहे हैं. ये नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है. नेक्स्ट सेक्शन है द डिसेंडेंट ऑफ कृष्णा. ये 38 तक जाएगा, 31 to 38. एकस हाँ एकैकस एकस एकैकस्याम 10 कृष्णो जगन्नाथ आत्मजा. एक एक रानी से 10 पुत्र उत्पन्न किए. यावत्या आत्मनो भार्या अमोघ गति ईश्वर. अमोघ गति उनको, अमोघ कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, ऐसे लिखा है. The Supreme Lord Krishna, whose endeavor never fails, begot 10 sons in each of his many wives. अमोघ गति को क्या लिखा है? Whose endeavor never fails. He is Ishwar. Our Lord Sri Krishna, who is always truthful intent, originated from all his wives 10 sons each, as his love for all of them was not fruitless. अमोघ गति फ्रूटलेस लव नहीं था. इसका मतलब सबको सुख दिया. अमोघ मतलब बहुत निष्पाप. देयर इज एन अल्टरनेटिव वर्जन, अमोघ रति इंस्टेड ऑफ अमोघ गति. चक्रवर्ती पाद कहते हैं. in that case the meaning is one whose desire do not go in vain and he always fulfilled. अमोघ गति, गति में कोई रुकावट नहीं आएगी. These are recalled मतलब पहले बताए गए हैं, उसका रिकॉल होकर है. In all the wives he had 10 sons each who were like him. Since his intention never go in vain, अमोघ गति, he begot in his wives at the time they should appear. इसका मतलब क्या? जब चाहते थे तब बच्चों का जन्म होता था. By his will 10 sons who were abode of highest spiritual elements, since they were the Lord. Since he was the Lord, this was not astonishing.
ईश्वर है, सब में से 10 क्यों किए? ईश्वर है, कर सकता है, और जब चाहे तब वो इसलिए कहते हैं, वैसे जब बच्चा कहीं होता है तो सूतक लगता है ना, तो कम से कम सूतक लगता है तो 6 से 10 दिन तक भाई पूजा पाठ बंद होता है। तो ये तो हर रानी से 10 बच्चे और 16,100 ने बच्चे जन्मे, तो ये खाते कब होंगे, पूजा कब करते होंगे? ये तो कंटिन्यूअस बच्चों का ही जन्म हो। तो कहते हैं ना, भगवान ने सूतक को द्वारका से बाहर बांध दिया था कि इधर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो रोज सूतक है। कंटिन्यूअस सूतक चल रहा था वहां। लेकिन भगवान जब चाहते थे तब बच्चे होते थे, उनकी इच्छा से हो रहे थे। तासाम उदाम वीर्याणाम अष्टादश महारथा महारथा आसनुदार यस्तस्तेषां नामानि मे शृणु। उनमें से उनमें से कितने? अमोग दीज सन्स ऑल possessing अनलिमिटेड वेलर, 18 वर महारथा, 18 उनमें से महारथ थे। नाउ हियर देयर नेम्स, अब हम नाम पढ़ेंगे उनके। उदार यशाह, उनका यश बहुत है, और उनके नाम अब पढ़ेंगे। आपका क्या प्रश्न है प्रभु? ये सूतक का क्या कंसेप्ट है वो, और वो किधर दिया है? मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये क्या दो होता चीजें, सूतक और पातक। मरने वालों के घर में पातक लगता है, बच्चा जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो सूतक में जब तक बच्चे का नामकरण संस्कार नहीं होता, मतलब जब तक विधिवत सा नामकरण संस्कार नहीं होता है, तब तक उस घर में भगवान की पूजा आदि नहीं की जाती है उसी गोत्र के लोगों के द्वारा, या भजन भगवान को भोग वोग तो किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा, या किसी गोत्र वाले अलग गोत्र वाले व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि ये काम उधर करो। हाँ, जैसे हम एक एक कानपुर में हमारा भक्त हुआ करता था, वो जायसवाल जी, उसके घर में कभी बालक होता था, वृंदावन से एक भक्त बुलाता था घर में, उनकी ड्यूटी थी उनकी पूजा करने के लिए। तो कभी कभी ये सूतक महीना भर चलता है, 27 का होता है न, तो ये सूतक का अलग अलग वर्णों के लिए भी अलग टाइम है, ऐसा भी है। तो प्राय जो सूत की ग्रह से बच्चा और माँ बाहर निकालते हैं पूजा करके, फिर सूतक खत्म होता है। तो ये विशेष रूप से हमारी जप वप ये सब हो सकता है, लेकिन भगवान की पूजा हमारे हाथ से नहीं हो सकती, विशेष रूप से उस वर्ण के, तो उसको सूतक कहते हैं। और पातक जो है वो नहीं, सूतक का मतलब सूत की जन्म के लिए, पातक का मतलब मरने के समय। लेकिन है दोनों में, काम नहीं कर, काम वही है जो नहीं करने हैं, लेकिन कारण दोनों का अलग है, एक जन्म का है और एक मरण का है। मरण वाला 11 दिन तक चलता है, फिर 12वें दिन के बाद जैसे गंगा में अस्थियां प्रवाह कर दी, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो सूतक खत्म। तो इसलिए बहुत से ब्राह्मण 11 दिन किसी घर में खाते नहीं है, कहते हैं ये तो इस वक्त पातक लगा हुआ है, तो हम नहीं खाएंगे, जब जब पूजा हो जाएगी या फिर खाएंगे। ये कल्चर है ऐसे। हम तो सबसे ऊपर है, किसी घर में मरे उसी दिन जाके भी फीस्ट बना के खा लेंगे। हम ट्रांसेंडेंटल है वैसे। वैसे कम से कम 11 दिन तक पुराने जमाने में, 11 दिन जब पूजा होती थी फिर ब्राह्मणों का भोजन होता था, ये नेम ये होता था। हाँ, गाय का दूध का पहले जो है वो बछड़ा पीता है, फिर ब्राह्मण को या लड़की को दिया जाता है, उसके बाद घर में इस्तेमाल होता है। ऐसा कुछ है कि पहले तो बछड़े के पीने जैसा होता है, तब होता भी दूसरा है, वो हमारे पीने जैसा नहीं होता है, जिससे वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको? है? कड़वस। खरवस। खरवस। हाँ, तो वो दूध उस वक्त बछड़ा पीता है, या नहीं तो 2-3 दिन के बाद दान में देते हैं पहले, फिर घर में इस्तेमाल होता है। कुछ नियम बनाए हुए हैं शास्त्र के, वो स्वस्थ के दृष्टि से ज्यादातर, और धार्मिक दृष्टि से ऐसा है। 34-35। ये जो मैंने क्या श्रवण किया था कि ये
जब मर जाता है आदमी तो उसका आसक्ति बहुत रहता है उसके साथ, तो उसके हिसाब से वो पूजा नहीं कर पाएगा सही तरह से, तो इसलिए वो पूजा नहीं करता है या इधर विग्रह का सेवा नहीं करेगा इत्यादि। लेकिन जन्म के वक्त क्या समस्या है मतलब? वो सारा वातावरण जो घर के अंदर है ना, अपवित्र होता है। और अब ये उस जो सूत की गृह पहले घर में था, अब तो अस्पताल में सबकी डिलीवरी हो रही है, तो सूत की घर ही नहीं है। पहले हर सभ्य परिवार में एक कमरा अलग होता था, उसका नाम ही सूत की गृह। अब प्रभुपाद का हाउस लिया है कलकत्ता में, उसमें वो एक घर है जहाँ प्रभुपाद का जन्म, वो सूत की गृह कमरा है, उधर दिखाते हैं कि ये कमरा है जहाँ प्रभुपाद का जन्म हुआ था। उसके ननियाल का घर था, तो वही कमरा घरों में इस काम के लिए अलग रखा होता था। जैसे गेस्ट रूम होता है, ऐसे सूत की गृह। उस समय वो स्त्री जो है वो उसको स्नान होता है, वो उस जगह अपवित्र मानी जाती है उस एक दृष्टि से। तो घर में अपवित्रता का वातावरण होता है। बुक में जो भगवान उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम इत्यादि का, तो ये सब से द्वारका में होता है ना, वृंदावन में वो सब ये सोचते नहीं ना, नहीं, वृंदावन उदाहरण में, प्रस्तुत करना वृंदावन में ऐसा वगैरह। नहीं, उदाहरण नहीं, वृंदावन में प्रेम वाला रस है। ये सिर्फ द्वारका और मथुरा में। मथुरा में भी ग्रस्त नहीं है भगवान का। जब ग्रस्त होगा तब ये शिक्षा शुरू होगी। यहाँ तो स्टूडेंट है, ब्रह्मचारी है मथुरा में, मथुरा में पढ़ने गए हैं, ब्रह्मचारी है वहाँ। वहाँ भी कुछ नहीं। हाँ, शादी नहीं हुई तो रानियां कहाँ से आएंगी? है ही वहाँ रानियां, और कहीं रानियां है ही नहीं। नहीं नहीं, गृहस्थ में रहे नहीं है, वहां तो पढ़ने गए थे, ब्रह्मचारी है। नहीं नहीं नहीं, मथुरा की वासियां उनसे, मथुरा की नवयुवतियों का उनका भाव काम भाव था, वो जो दूर से करती थी वर्णन। लेकिन कोई कुब्जा के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं गए। और कुब्जा के पास वचन इसलिए पूरा किया, ये दिखाने के लिए कि जब कुब्जा को दिया हुआ वचन भी निभाता हूं तो गोपियां, आपको वचन दिया है कैसे नहीं आऊंगा। ये सिर्फ इसी बात को दर्शाने के लिए सिर्फ कुब्जा की बात को माना था। कुब्जा प्राय काम था, ये कोई प्रेम नहीं था। और कुब्जा वास्तव में सत्यभामा का एक्सटेंशन है और पृथ्वी का अंश है, जिसके ऊपर भार के कारण टेढ़ी हो गई थी, भगवान ने उसको सीधा कर दिया। और वो भगवान की अगर सत्यभामा का अंश है तो भगवान की अपनी रानी है। उस दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का उधर जाना भी संगति है, लेकिन अकेले नहीं गए थे, उद्धव के साथ गए थे। ऐसे लिख, इसको इसको उद्धव के साथ गए थे, अकेले नहीं गए थे। वहां उनका आचरण दूसरा था सिखाने का। अवंतीपुर गए ना सिर्फ हाँ, बाकी के टाइम 33 साल, कितने साल मथुरा में रहे? मेरे ख्याल 17 के साल है। 17 साल वो रहे, तो 17 + 11 पकड़ के 17, 17, 11 यहाँ और उसके 90, बाद फिर 90 वहाँ। उधर शादी वगैरह सब उधर हुआ, सब उधर। द्वारका में। यहाँ सिर्फ लड़ाई किया। मथुरा में जरासंध से 17 बार युद्ध किया। काल यवन और इन सबको मारने का काम किया। मथुरा मारने की जगह है। पर्द्युमनश्चा निरोधश्चा धीमति मान भानुरेव च शाम्बो मधुरवृद्ध बाहुश्च चित्रः भानो वृक्कः अरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनदन्दनः चित्रबाहो विरूपश्च। ओ कबीर न्योग्रौन न्योग्रोध एव च न, नय ग्रोधन एव च। ये जो बड़ा किया ना ऊपर से, डी की डंडी हट गई है मेरे यहाँ। देवर प्रद्युम्न ये अनिरुद्ध दूसरा है। ये प्रद्युम्न का बेटा भी अनिरुद्ध है, लेकिन वो नहीं है, ये कृष्ण का बेटा अनिरुद्ध है, ये दूसरा है। दीप, हाँ, दीपतिमान भानु शांब मधु वृद्ध बाहु चित्र भानु वृक्क अरुण पुष्कर वेद बाहु श्रुत देव सुनंदन चित्र बाहु विरूप कवि और
न्यग्रोध। ये नाम लेने से कोई फायदा होता है क्या? हाँ, एक एक वो पास्ट टाइम सुना है प्रभुपाद का, बोस्टन का पुराना। वहाँ कोई बदमाशी उन जमाने में होती थी, तो कुछ लोगों को पुलिस में पकड़ गए थे। तो एक बहुत, नंद कुमार उस समय भक्त था, बहुत सरल था, प्रभुपाद का सेवा में रहा है नंद कुमार। उसको विटनेस बॉक्स में खड़ा किया, कहा बताओ कौन कौन था उस वक्त, कैसे हुआ। तो बेचारे को कुछ मालूम नहीं, उसको याद आया, अरे ये भक्त थे, हाँ गोपीनाथ था, वहाँ दामोदर था, गिरिराज था। जैसे 5-7 नाम लिए ये भक्तों के, उसके अंदर में ऐसा कुछ प्रेरणा मिली कि उसने ऐसा वक्तव्य दिया, केस जीत गए और सब रहे भक्त बाहर निकल गए। तो के भक्तों के नाम के उच्चारण करने से वो भगवान अपने नाम से ज्यादा पसंद किया, और उसको ऐसी बुद्धि थी कि वो सफलता प्राप्त हो गई। तो इसी को, उदाहरण को देख के हम कहते हैं ये नाम उच्चारण करने से बहुत बड़ा लाभ होता है वास्तव में। तो ये नाम अपने आप में भगवान से जुड़े हुए नाम है ना, तो इन नामों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। द अनिरुद्ध मेंशन हियर इज कृष्ण सन, नॉट इज वेल नोन ग्रैंडसन थ्रू प्रद्युम्न। ये चक्रवर्ती पाद ने कर दिया है साफ। हाँ जी, 18 मोस्ट हरे इम्पॉर्टेंट। हाँ, हाँ, तो लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि जनरली हमारे संप्रदाय में तो जो नाम होते हैं डायरेक्टली कृष्ण से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे इसमें कवि, विरूप, ये कृष्ण से तो रिलेटेड नहीं होंगे, मतलब नाम जो होते हैं वो क्योंकि पहले जो नाम रखते थे जनरली, अभी परंपरा में तो हम तो गौड़ीय वैष्णव में डायरेक्टली कृष्ण का दास करके नाम रखते हैं, तो इधर तो ऐसे नाम नहीं हो। अभी जन्म हुआ है इनका, अभी तो दीक्षा दोगे क्या? नहीं, लेकिन इनका जब गुरु दीक्षा के पास जाएंगे तब दास बनेंगे ना। ये तो जन्म के नाम बताए जा रहे हुए। नहीं, वो फ्यूचर में वही नाम होंगे ना। आप दे दो दीक्षा, सबके पीछे दास लगा दो। हाँ, इनमें से कुछ नाम हैं जो दिए जाते हैं भक्तों को। हाँ, हाँ, वृंदावन दास ये से आता है, पुष्कर दास, ये नाम लेके देते हैं। हाँ, वो वृकासुर है, ये दूसरा वृक है, इसका भी अर्थ होगा कोई, वृक। अब इनमें से कुछ रोहिणी के पुत्र भी थे, दीपति मन। हाँ, रोहिणी तन्यस हरे दीपंति मंत, तामर तापा वर्दिसन ऑफ रोहिणी, चीफ ऑफ द 16,000 क्वींस। इसका मतलब इनमें जो विरूप, समटाइम विरुत्था, सो विरुत्था भी कहते हैं, चित्रबाहु, ये तो ये अलग अलग, ऐसे नहीं सब के मुख्य रूप से कौन से किस रानी के ऐसा भी नहीं बताया हुआ है, लेकिन ये 18 मुख्य थे उनमें से। अब 35, एतेषानपि राजेन्द्र तनोज्ञानां मधुद्वेष प्रद्योमनासीतः प्रथम पितृवद रुक्मणी सुत। इन 18 में से प्रद्युम्न जो था ना, वो रुक्मणी का पुत्र भगवान के समान था, देखने में भी समान था और बलवीर्य सब में समान था। ओ बेस्ट ऑफ द किंग्स ऑफ दीज सन्स begotten by Lord Krishna, the enemy of Madhu, the most prominent was Rukmani's son Pradyumna. He was just like his father. Take their father, like their father, the sons had great powers. That is suggested by the name Madhu Dvesha. Among them, the best Pramatha was Pradyumna, since he was equal to his father, being the son of Rukmani, who was the best queen. O king of the kings, you should understand this, since you are famous in the family of kings. राजाओं के परिवार में आप हो, आपको पता है। 36, स रुक्मणी नो दोहेत्राम उपये मे महारथ, तस्याम ततो अनिरुद्धो अभूत ना नागायतः बलान्वितः। About the great warrior Pradyumna married Rukmi's daughter, Rukmavati, who gave birth to Aniruddha. He was as strong as 10,000 elephants.
He was the great warrior because he abducted Rukmavati in the battle, defeating other kings. Aniruddha was stronger than Pradyumna. They followed pastime in this world. Actually, however, they were all Ishwar, separately, supremely powerful. ये ऐसे कह रहे हैं जैसे चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसा इसका भाव है। अब आगे की बात कह रहे हैं। सचापि रुक्मणी पौत्रीं द्वैत्रो जिग्रहे तथा वज्रस्तस्याभवतस्तो मौशल्लादि अवशिष्येत। सचापि रुक्मणी पौत्रीं, रुक्मणी की मतलब रुक्मी की, ये रुक्मणी नहीं है, रुक्मणी नहीं है, रुक्मी है, रुक्मी के बेटे की बेटी, पोती, पोती, रुक्मी की पोती का विवाह द्वैत्र जिग्रे तथा उससे विवाह हुआ अनिरुद्ध का, उससे बेटा हुआ वज्र। और वो वज्र वो है जो मूषल लीला में बच गया यदुवंशियों में। ठीक है, ये इसका अर्थ समझ में आ गया। रुक्मीज डॉटर सन अनिरुद्ध, ये रुक्मीज डॉटर सन, तो रुक्मी की डॉटर हुई ना, जो प्रद्युम्न से शादी हुई वो रुक्मी की बेटी थी ना। अनिरुद्ध मैरिड रुक्मीज सन्स डॉटर, रुक्मी के बेटे की बेटा पोती, पोती, उसका नाम था रोचना। फ्रॉम हर वॉज बॉर्न वज्र who would remain among the few survivors of the Yadu battle with clubs. इसका मतलब रुक्मणी के बेटे प्रद्युम्न का विवाह हुआ रुक्मी की बेटी के साथ, और रुक्मी के बेटे की बेटी के साथ विवाह हुआ अनिरुद्ध का, अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा हुआ। तो हम इसको किसके यहाँ विवाह हुआ उसको छोड़ो, सीधा ऐसे याद करो, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्र, और ये वज्रनाभ मथुरा के मंडल की स्थापना की, ये सप्त देवालय स्थापित किए, ये सब भगवान की लीला के स्तन बनाए, ये वज्रनाभ की बात है। वज्रनाभ और उद्धव दो यदुवंशियों में है जो मूसल लीला में नहीं मरे। और उद्धव क्यों नहीं मरे? क्योंकि लीला है भगवान की, मूसल लीला भगवान की इच्छा थी, और वो द्वारका में कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए भगवान को उनको प्रभास क्षेत्र लाना पड़ा, क्योंकि वो प्रलय का क्षेत्र है, शंकर का क्षेत्र है, वहां सब मारे जा सकते हैं, लेकिन द्वारका में शराब काम नहीं करता, तो भगवान उनको वहां लेकर आए। और वहां जब आपस में लड़के मरे तो उसमें जो देवता का अंश था वो सिर्फ वापस देवलोक गया। यदुवंशी अप्रकट लीला में द्वारका में रहे, कहीं गए नहीं। तो वो यदुवंशियों में दो चीजें थी, एक तो देवता का अंश था जो लीला में भाग लेने के लिए आया था, वो इसमें संहार होके देवलोक गया, लेकिन जो वास्तव में यदुवंशी भगवान के नित्य पार्षद है वो द्वारका में ही रहे अप्रकट लीला में। मेरे ख्याल में ये 11 स्कंद में आएगा। तो वो लीला सिर्फ देवताओं को अलग करने के लिए थी, और उस लीला में वैसे हम कहते हैं इसलिए कि उद्धव के ऊपर राधा रानी और गोपियों की कृपा थी, और वज्रनाभ वो माँ के गर्भ में था जब कुरुक्षेत्र गए थे सब। तो वज्रनाभ की माँ इस रोचना ने बहुत बड़ी सेवा की थी राधा रानी की, वो भी तो आई हुई थी कुरुक्षेत्र। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया था, बहु रानी तेरा बेटा वृंदावन की भगवान की लीला स्थलियों का हमारे उसका पुनः जो है जीर्णोद्धार करेगा। तो ये राधा रानी की कृपा वज्रनाभ के ऊपर उसकी माँ के गर्भ में था तब थी, इसलिए स्वराप के कारण भी होने के यदुवंशी होते भी नहीं मरे, और इन्हीं से यदुवंश आगे चला। उद्धव भगवान के प्रतिनिधि है, और ये भगवान का ब्रज का जो है सारा उद्धार करने वाला है। वैसे वज्र
कभी कभी कहते हैं वज्र भगवान के चरण में जो वज्र का अंश है ना, उसी का अवतार है। जो वज्र का चिन्ह होता है ना, उसी का ये अंश है। Not only did Pradyumna marry his cousin, but Aniruddha also did that, is indicated by the word api. Aniruddha married Rukmi, so granddaughter. From Aniruddha Tata came Vajra. ये कजन मैरिज है सारे। 38 प्रतिबाहु अभूत तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजा सुबाहु शान्तसेनो अभव चत्तसेनस्तु ततस्सुता। From the Vajra came Pratibahu, whose son was Subahu. Subahu's son was Shantasen, and from Shantasen was born Kon. Huh? Oh, from whom Shantasen was born. ठीक है, ये सिर्फ आप सुनाए किसकी जिन परंपरा सिर्फ बताई जा रही है? रुक्मणी के पहले पुत्र की, प्रद्युम्न की। ये प्रद्युम्न के वंश में कौन आगे आया, वो जहां तक पहुंचे हम। 39 हाँ जी। वज्रनाभ और परीक्षित महाराज पैरेलल में हैं। परीक्षित महाराज ने ही वज्रनाभ को राजा बनाया है, और वो जो पूरा वृंदावन में स्टैब्लिशमेंट हुआ सब परीक्षित महाराज के सुपरविजन में हुआ, वज्रनाभ ने किया। अब ये वज्रनाभ के बच्चों के जब नाम बता रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के नाम, मतलब ये तो होने वाला है। ये होने वाला है का मतलब क्या है इसका? ये कथा, हाँ, मतलब कोई परीक्षित और वज्रनाभ अगर पैरेलल हैं तो वज्रनाभ के बच्चों के बच्चों के बच्चे, दैट इज लाइक समथिंग इट इज गोइंग टू अपीयर। ऐसा तो नहीं है, ये हो गए, उनकी कथा हो रही है। ये परीक्षित को ये कथा बताई जा रही है। परीक्षित को 30 साल राज किया था, और उस वक्त वज्रनाभ था, उसका बेटा था, और उसके बाद क्या क्या जेनियोलॉजी में आया, ये एक मतलब हो सब चुका है। तो परीक्षित को ये बताया जा रहा है, ऐसे आप कह रहे हैं परीक्षित को ये बताया जा रहा है कथा में, तो परीक्षित के समकालीन है वज्रनाभ। एक ही समय में थे राजा। परीक्षित हस्तिनापुर का था और मथुरा का वज्रनाभ था। तो उसके बच्चे भविष्य में ऐसे ऐसे होंगे। तो ये भी अगर कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र है, उसमें सब चीजें जो कही जाती है वो सत्य होती है। लेकिन ऐसा किसी ने लिखा नहीं है कि फ्यूचर टेंस है। लिखने में फ्यूचर टेंस नहीं दिख रहा है। शायद ये गणना कराई जा रही है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये सुना रहे हैं। वो है, उसमें दिखते नहीं है कोई भी आज। हाँ, क्यों भाई, जूम वाले हो? वो कहते हैं हमारे को अनम्यूट नहीं करते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसे कभी कभी बोलते हैं वो। कल मेरे को मिले थे कुछ, बोला हमारा मुंह नहीं खोलने देते हैं। हम क्या पूछे कि उनके हाथ में है सब कुछ है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। एक बार उनको खोलो, बोलो हरे कृष्णा बोलो, पता लगे हैं सोए हैं, जाग रहे हैं। हरे कृष्णा। आप लोग जाग रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे आपका कृष्णा। कोई प्रश्न तो नहीं है? भगवान के बच्चों के लिए कुछ तोहफा वोफा भेजना है तो भेज देना। हो गए। हाँ हाँ, कोई कोई खिलौना टाफी वाफी भेजना है तो भेज देना। जागते रहो। हरे कृष्णा। कौन सा वर्ष हम पढ़ने जा रहे हैं? 39 39 न हे एतस्मिन् कुले जाता अधना अबहु प्रजा अल्पायुषो अल्पवीर्यश्च अब्रह्मण्याश्च जजिग्नरे। None one born in this family was poor in wealth, कोई गरीब नहीं था। और ए प्रोजनी शॉर्ट लिव्ड, कोई कम समय नहीं जिया, सभी लॉन्ग लिव्ड हुए। वीक भी कोई नहीं था, सब बलवान थे।
आर निग्लेक्टफुल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, और धर्म के भी ज्ञाता थे। In the family of the Lord, no one was born without wealth as long as the mother and father were pure Kshatriyas. Everyone else born in the family, beside those mentioned, such as Vajra, had similar greatness. No, anyone, not anyone, born in the family of Yadavas, related to Lord, was lacking in wealth, etc., or none of them was lacking even in wealth, etc. धर्म की पालन की पार्टी। यदो वंशः पुरुषोत्तानां पुंसां विख्याता कर्मण संख्या च शक्त्यै कर्तुम् अपि वर्षायुते आयुते नृप। The Yadu dynasty produced innumerable great men of famous deeds, even in tens of thousands of years. O king, one could never count them all. कितने यदुवंशी थे वैसे जनरली? आपने ऐसे पढ़ा है कभी? भाषा में कहते हैं 56 कोटि, 56 कोटि यदुवंशी। 56 कोटि माने करोड़। और उसके बाद भगवान के 16,100 उससे अलग 108, और उनके बच्चे उससे अलग। तो ये द्वारका कितनी बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं है जितनी आज। ये एक रुक्मणी का महल है जो आजकल जाते हैं, जिसको भेंट द्वारका कहते हैं। यहां सुदामा भेंट लेकर गया था, ये रुक्मणी का महल है। ऐसे 16,108 तो और सिर्फ कृष्ण के थे, और 56 करोड़ और यदुवंशियों के थे। इसलिए समुद्र के किनारे किनारे माधवपुर 100 किलोमीटर दूर है द्वारका से। वहां रुक्मणी और कृष्ण का विवाह हुआ है। वो रुक्मणी क्या कृष्ण की विवाह स्थल है माधवपुर, बिल्कुल समुद्र के किनारे पे है। और उससे आगे थोड़ा पीछे वापस आएंगे 70-80 किलोमीटर थे तो पोरबंदर है, वहां से सुदामा अंदर चला गया था रुक्मणी के घर। और इस तरफ कभी रुक आप जाएं तो द्वारका जाने से पहले अहमदाबाद से द्वारका जाते हुए 65 किलोमीटर बिफोर द्वारका अंदर आपको 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा राइट साइड में, तो पिंडार्क तीर्थ है, जहां सांबा पेट पे कपड़ा डाल के और ऋषियों को कहा था और शराप मिला था। यहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, जहाँ वो रुक्मणी को खीर लगा के और कृष्ण को रथ से खिंचवाया था। ये पूरी लीला है ना, ये क्षेत्र इधर है। तो 65 इधर 100 उधर, 165 किलोमीटर समुद्र की ये पूरा, ये द्वारका का इस तरफ। अभी इसके अंदर सारा यदुवंशी थे अंदर। ये बहुत लंबा चौड़ा है। अभी तो कुछ नीचे मिले भी हैं अवशेष महलों के, आर्कियोलॉजी वालों को। तो बहुत लंबा चौड़ा है द्वारका, इतना छोटा नहीं। वैसे द्वारावती का दूसरा नाम क्या है? पहले स्कंद में क्या नाम है दूसरा? द्वारका के 2-3 नाम और है। हाँ, सौराष्ट्र तो सौराज है उसको कहते हैं। ये सौराष्ट्र में है भी नहीं ये। हाँ, सौराष्ट्र से आगे है थोड़ा। एक राष्ट्र है। कुशस्थली एक नाम, कुशस्थली है, दूसरा एक नाम है। शरियाती महाराज का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? एक नाम और है द्वारका का। कुशस्थली एक और नाम है, ध्यान दो, याद करो। पहले स्कंद में लिखा हुआ है। सूर्यवंश के महाराज शरियाती के बेटे के लिए एक 100 योजन धरती भगवान ने वैकुंठ से नीचे दी, जो फिर इसके नाम से प्रतिष्ठित हुई। गर्ग संहिता में ये कथा है। क्या नाम है? नहीं, कुछ नाम नहीं मिला आपको?
नहीं, और द्वारका तो गोपियों ने नाम दिया। द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, तो द्वारका हो गया। मेरे को अभी जबान पे नहीं आ रहा है, नाम आ जाएगा। शरियाती के बेटे के लिए वैकुंठ से 100 योजन धरती को, धरती के ऊपर 100 योजन धरती वजन आपको, उसका नाम है हाँ क्या है, बेटी तो सुकन्या है, उसको छोड़िए। इसका एक बेटा है जिसका नाम यहां नहीं है। उसके नाम से द्वारका का कोई नाम याद है दूसरा किसी को, कुशस्थली के अलावा? हाँ, आनर्त, आनर्त देश, आनर्त नाम था शरियाती के बेटे का। हाँ, आनर्त क्या है, शरियाती ने कहा मैं देखो मेरे बाहुबल से मैंने धरती को जीत लिया है, तो शरियत ने कहा धरती का स्वामी भगवान होता है। आनर्त ने कहा महाराज हम सब सेवक हैं। बोला तो फिर जाओ भगवान से लो अपने लिए धरती, उसके ऊपर राज करो, मेरी धरती से निकलो। वो जाके भगवान की प्रार्थना की आनर्त ने, तो भगवान ने कहा क्या करूं, धरती तो इतनी है, तुम्हारे पिता का राज है, पर तुम्हें चाहिए तो फिर 100 योजन में निकाल के देता हूं, वो आपके नाम से। वो आनर्त देश ही द्वारका है। उसका नाम कुशस्थली भी है और उसका नाम द्वारावती भी है। तो ये अनर्थ देश इसका पुराना नाम है। One cannot enumerate even those who had a greatest powers. What to speak of enumerating all the others? It is well known that the Yadavas king in the Mathura numbered 160 billion. मैंने कहा ना ये 56 कोटि, ये 56 कोटि हो जाएंगे नहीं, जो क्या है 160 बिलियन। ये आप इसको 56 कोटि कहते हैं, सामान्य कहते 56 कोटि यादव। यहाँ किधर 56 कोटि हो जाएंगे कि नहीं? 50,060 बिलियन। हाँ, मथुरा से जो वहां लाए गए थे कितने हुए? 560 बिलियन। 560 बिलियन 56 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो वो 56 कोटि कह रहा हूं मैं आपसे, ये यादू हैं। वर्ष नंबर 41। तिस्रः कोटि सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्य कुमाराणामिति श्रुतम। अब कहते हैं वो कितने थे उसको छोड़ो, ये सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए जो बच्चे थे ना। आई हैव हर्ड फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज दैट यदु फैमिली इम्प्लॉयड 38 करोड़ 80 लाख, या कितना 3 करोड़ 88 लाख टीचर्स जस्ट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। हाँ, यदु फैमिली के इतने तो आचार्य थे जो उन बच्चों को पढ़ाते थे। एक 101 के पास भी होंगे, 56 करोड़ के बच्चे एक। आई हर्ड दैट देर आर 3,000 crores and 8,800 teachers for teaching the Yadu children. The teacher adhyapakaha for the thousands of children इतने थे। For every 1,000 teachers there was one teacher, students. This is well known. Instead of shrutam sometimes shrutihi, brother Vaishnava Toshuni। ठीक है कि वो तो गिन नहीं सकते, टीचर गिनते हैं कि इतने थे, तो उसके स्टूडेंट कितने होंगे? 42 ऐसे बता रहे हैं। सांख्यानाम यादवानाम कहा करिष्यति महात्मनान यत्रायुतानाम आयुत लक्षणेनास्ते स आहुकः। Who can count all the great Yadavas when among them King Ugarsin alone was accompanied by an entourage of 30 trillion attendants? Huh?
एक उसके सेवा में इतने सेवक होते थे तो और का क्या बात करेंगे। The plural number of the word Ayutanam, tens of thousands, indicate that King Ugarsen had especially 30 trillion attendants, rather than an indefinite number of the tens of trillion. This can be understood by applying the interpretational rule of Kapinjala Adhikarana, the logic of referring to pigeons. Somewhere in the Vedas it is found the injunction that one should sacrifice some pigeon. This plural number should be taken to mean not an indiscriminate number of the pigeons, but precisely 3 of them, since the Vedas never have any matter vague. Thus Ayutanam, Ayut Lakshanena, with legs of Ayut means 3 times 10,000 times 10,000 times 10,000 is equal to this many legs, which is 3 legs. अब गिनते रहो। How can one count them all? One cannot count even the servants. Who can count the chief of the Yadvas? Among them, Ugarsin had 30 trillion attendants. Instead of Sa-ahuka, sometime Sada-hukaha is seen. The present tense indicates eternal pastime. This will be established later. Verse 43. Devasura bhavahata daitya yecha san sarunaha daruna sudarunaha te kotapana manushesho prajadripta baddha babadre. The savage descendant of Diti, who had been killed in the past ages in battles between the demigods and demons, took birth among human beings and arrogantly harassed the general populace. इसका मतलब क्या? दिति के बच्चों के वंश जो देवासुर संग्राम हुआ उसमें जो मरे थे वो फिर वापस यहाँ मानव होके आए। तो इसमें बहुत सारे ही असुर थे। ये सारे जिसको कहा जाए कि जरासंध और ये जितने से सब वही वापस असुर लौट के आए थे जिनको मारना जरूर पड़ा। There are 2 type of Yadvas. कर्म संद्रम में लिखा है there are 2 type of Yadvas. Some were Devas and some were eternal associate. The Devatas then appeared in the dynasty were unlimited. This is explained in 2 verses. The Devatas that appear in the dynasty were unlimited. This is explained in the 2 verses. The demons were most ferocious in later birth become proud and harass the population. Verse number 44. Tan nigraya harina prokta deva yadoh kulehe avtirnaha kulasatam tesham ekadhikam nirpa. To subdue these demons, Lord Hari told the demigods to descend into the dynasty of Yadu. They comprise 101 clan of the king. ये तो जो यदुवंशियों में 101 जो अंधक वृषणी भोज ऐसे 101 अलग अलग इनके जो है नाम थे। कुल शताम एकाधिकम. The dynasty of 101 clan is enumeration of the clan, not of the individual person, since they were countless. To control the demon, the Lord told the Devatas to appear in the Yadu dynasty. Sometime Lord killed the demon and sometime he did it along with the Devatas as Yadus. Some entered into the bodies of Yadu members
and some were born separately as Yadus. Since they were in 110 clans, they are impossible to count. नाम कौन से? दो तीन हाँ, भोज, अंधक, सातवतास, ऐसे नाम अलग अलग थे. Now verse number 44. तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभूते न भवद्धरि ये चानुवर्णे तन्तस्य विवर्धो सर्व यादवा. Because Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the Yadavas accepted him as their ultimate authority. And among them, all those who were his intimate associates especially flourished. Only the Lord knows how many eternal associates were present. Their number was even greater than those who were not eternal associates. All the Yadavas who were eternal associates of Lord increased unlimitedly in powers and wealth. Only the Lord could bear witness to the amount of power they had. Others could not. It was beyond the intelligence of Brahma. What to speak of Devatas? Hari once says, Devanam cha hitarthaya vayam yata manushyatam. To help Devatas, we came as humans. The Lord Hari has the power to bring everyone, eternal associate and others, together, since he is endowed with the 6 qualities, Bhagavan. That is significance of the Hari and Bhagavan in this verse. तो यादव भी भगवान के लिए जो आए थे वो असंख्य थे. एटर्नल एसोसिएट दोनों थे. कोई नहीं जानता था कितने थे, भगवान जानते हैं सिर्फ इसको. Last verse of this section. Glorious position of Yadus and power of Yadu dynasty. मैं ये कह रहा था, इसलिए भगवान ने यदुवंशों का संहार किया कि मेरे जाने के बाद इनको संभालेगा कौन. और इसको हम कथा बाहर करते हैं तो बोलते हैं अच्छा किया भगवान ने, ये 2-3 यादव बचे हैं अभी तक, उनसे हम परेशान हैं. सारे होते तो क्या होता है? 2-3 ही सिर्फ है, उनका नाम लेने से पूरा भारत परेशान है. हाँ, 2-3 यादव अभी बचे हैं, वही परेशानी का कारण है. तो सारे होते तो क्या होता. तो भगवान ने कहा वापस करो, इनको ले जाओ, ये मेरे जाने के बाद यहाँ रहेंगे तो बड़ा संकट पैदा कर देंगे. Vrishnis were so absorbed in Krishna consciousness that they forgot their own bodies while sleeping, sitting, walking, conversing, playing, bathing, and so on. The greatest quality of Yadava is described. They were not aware of themselves while sleeping, etc. And even while awake, they did everything under the inspiration of Lord. They did not have the ability to individually investigate things since they were absorbed in Krishna. Playing indicate playing dice. Adi means even during amorous action. Nothing could compare with this family. Yad Yadavan kul aho avishyan avishayang asate. The Yadava dynasty's strength is unbearable for the earth. 11.1. Krishna, however, had fear of the state of madness that separation from him could cause them. This will be explained in the 11.1.8. How could the Brahmins curse the Vrishnis, who were always respectful to Brahmanas, charitable and inclined to serve senior and exalted personalities, and whose mind were always fully absorbed in the thought of Krishna? कैसे उनको कर्ज दे सकते हैं? भगवान की इच्छा थी कि इन सबको वापस ले जाने हैं. Now, मेरे ख्याल लास्ट सेक्शन है 47 to 50.
eternal nature of Lord Krishna's pastime. और ये भी प्रोज में है सारा. The heavenly Ganga, ये गेंजीस जो लिखा है ना, हमारे लोग कहते थे गंगा जी, अंग्रेज गंगा जी कहने नहीं आता है, गेंजीस. तो गंगा जी को वो गेंजीस गेंजीस का हमने समझा गेंजीस कोई सही वर्ड है गंगा के लिए, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया. ये गंगा जी है, उसको गेंजीस कर दिया. जैसे राबिंद्रनाथ को क्या कहते हैं? राबिंद्रनाथ, अरे ठाकुर है भाई बंगाल में. अंग्रेज को उच्चारण करने नहीं आया, उसकी टांग पकड़ के टैगोर बना दिया. वो टैगोर नहीं है भाई, उधर तो भक्ति में तो ठाकुर है, टैगोर थोड़ी है. तो ऐसे राबिंद्रनाथ ठाकुर है, जो पूजनीय होते हैं उसको ऐसे कहते हैं. वो उच्चारण नहीं हुआ, अंग्रेज ने टैगोर बना दिया, हमने टैगोर ही मान लिया उसको. वो गंगा जी को गंजीज मान लिया. ये भाषा का है. आप नहीं, वो तो उनके जाति के नाम है, लेकिन मॉरिशस में जाके उनके नाम देखो. नाम था किसी का बाल जीवन, तो वहां लिखा है बुलजीन. अंग्रेजी ने जो लिखी है ना, वो अंग्रेज लिखा हुआ था, क्लार्क लिखने के लिए बिठाया था, उसको जैसे बना वैसे उसने लिख दिया, तो उनके सारे नाम बिगड़े हुए. अब हम भी गेंजीज कर रहे हैं. देखो, चेंज करना चाहिए. गंगा जी है जी. The heavenly Ganga Ji is a holy place of pilgrimage because her water washed the Lord's feet. ये heavenly गंगा क्यों लिखा है जी? ये पहले गंगा जब ऊपर से आती है तो कहां जाती है? ब्रह्मा जी करमंडल में पहले जाती है, फिर ध्रुवलोक में जाती है, फिर वहां से देवता अपने विमानों में देवलोक में लेकर आती हैं, फिर देवलोक से धरती पे आती है. तो ऊपर जो गंगा है उसको कहते हैं हेवनली गंगा. But when the Lord descended among the Yadus, his glories eclipsed Ganga Ji as the holy place. Both those who hated Krishna and those who loved him attained eternal form like his in the spiritual world. जो प्रेम से किया वो भगवान के धाम के गया, और असुर भी उनका भगवान ने उद्धार कर लिया. ये असल में महिमा है वह भगवान की एटर्नल, कि गंगा से ज्यादा भगवान का और भगवान के भक्तों का प्रभाव है. और मारने वाला भगवान किसी को मारता है, द्वेषी का भी उद्धार करता है, अपने का भी उद्धार करता है. The unattainable and supremely self-satisfied goddess of fortune, for the sake of whose favor everyone else struggle, belongs to him alone. लक्ष्मी कभी भगवान को नहीं छोड़ती है. His name destroy all inauspicious, भगवान का नाम when heard and chanted. He alone has set forth the principle of various disciplic succession of sages. What wonder is that he whose personal weapon is wheel of the time relieve the burden of the earth. ये सब भगवान की महिमा है. Summing up the 10th canto, the jewel mine of Krishna's eternal pastime, Sukdev mentioned 5 unique qualities distinguished Sri Krishna from all other expansions: plenary portion and incarnation. ये 5 चीजें कृष्ण में हैं जो अन्य अवतारों में नहीं है. ये समरी है. Number 1, first, Krishna's reputation as the sacred place of pilgrimage, Tirtham, eclipses that of holy Ganga Ji when he descended into the Yadu dynasty. Previous to the Ganga Devi was the most sacred of all Tirth, being the water that had bathed Lord Vaman Dev's feet. अब भगवान जहां अवतार हुए वो उससे ज्यादा पवित्र करने वाला हो गया. दूसरा, Krishna gave liberation not only to his surrendered devotees but also to his enemies. Loving devotees like Braj Gopis attend the opportunity to enjoy pastime of conjugal love with Krishna's personal form, Swarupam, in the spiritual world.
Whereas inimical demons like Kansa, who were killed by Krishna, attained this Sayujya Mukti of merging into his divine form. Third, Lakshmi Devi, Lord Narayan's constant companion, whom great demigods such as Brahma serve mentally to win her slight favor, could not conquer Ajit, Krishna, even by severe austerities, and could not bring Krishna under control and enjoy the Ras Leela as the Virj Gopis did. वो लक्ष्मी अभी भी बेल वन में तपस्या कर रही. Fourth, the name of the Krishna is superior to the name of Narayana and to the name of all Krishna's other expansions. These two syllables, Krishna and Na, combined together, destroy all inauspiciousness and illusion. Our chanting that holy name eradicate all ignorance. Nama Angala Glam of the Krishna supreme position, thus capturing even the liberated souls. Recitation of Krishna's holy name is Shruta Matha, in the sense that it totally crushes Mathanti, the excellence of all other spiritual practices described in the revealed scripture, in the words of the Brahmanda Purana. By uttering the single name of Krishna just once, one attains the same benefit as gained by reciting the Lord Vishnu's 1,000 names 3 times. Fifth, Krishna solidly reinstated Dharma, the bull of the religion, Gotra Dharma, on his 4 legs of compassion, austerity, cleanliness, and truth. Thus, Dharma could once again become Go-tar, protector of the earth. Go mane earth, tar matlab protector. At the end of the Dwapar Yuga, Dharma was lacking 3 legs, as is stated in the words of the Mother Earth in the form of cow. ये हम पढ़ा है पहले स्कंद में. Since Krishna alone possesses these 5 wonderful characteristics, his removing the earth's burden is not at all astonishing, though it may be for the common man. तो ये 5 चीजें याद करने की एक कृष्ण के 10वें स्कंद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो और किसी के पास नहीं है. लघु को आप गंगा सताम यहाँ लिखा renowned Yamuna is my domain of Mathura is 100 times greater than Ganga. About this there is no dispute. O goddess, वारा पुराण में लिखा है जमुना गंगा से 100 गुना ज्यादा. आपको मालूम है गंगा जमुना के ऊपर बहस हुआ था. हाँ, कहे गंगा बड़ा है कि नहीं, जमुना महान है. तो उस वक्त आए वृंदावन में, आगरा में बादशाही थी उस वक्त. तो अच्छा हमारे गोस्वामी को ले गए, संभव जीवा है कि यूप है. तो वहाँ जाके इस तरफ गंगा वाले बैठे थे, इस तरफ जमुना वाले. तो पहले कहा देखो भगवान का चरण धो के आती है, गंगा महान है. तो सबने कहा गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय. फिर कहा वही भगवान श्री कृष्ण जिसके वामन देव के रूप में चरण दे के गंगा आती है, इतनी महान है. साक्षात वो कृष्ण पूरे का पूरा जमुना में रोज क्रीड़ा करता था. तो जमुना माँ हुई ना, जय जमुना मैया की, दूसरा पक्ष कहने लगा. फिर गोस्वामी कहते हैं फिर वो गंगा और जमुना दोनों साथ होके प्रयाग में जब मिलती हैं तो जमुना कहती है मैं रूप रखूंगी अपना सांवला, और गंगा कहती है मैं नाम रखूंगी. तो नाम गंगा रहता है लेकिन रूप जमुना का है. पानी वहां से जमुना का ज्यादा है. और वो जब मायापुर से जाती है तो वही कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु उस गंगा में क्रीड़ा करते हैं, इसलिए गंगा महान है. तो दोनों को खुश कर दिया. गंगा पहले गंगा महान है, उससे जमुना ज्यादा महान है. फिर वो जमुना गंगा से मिल गई, जमुना ने रूप रख लिया, गंगा ने नाम रखा. आगे पानी काला है जमुना जैसा, लेकिन नाम गंगा है. अब प्रयाग में देखेंगे जमुना का पानी ज्यादा है, गंगा का पानी कम है. तो रूप जमुना का है और नाम गंगा का है. दोनों बहनों ने किया कि कौन नाम रखेगी कौन रूप रखेगी. तो ये यहाँ लिखा है. काफी जीव गोस्वामी ने काफी श्लोक कोट किए हैं कि तीर्थ भक्त कैसे जब गंगा से ज्यादा होता है. जब भक्ति गंगा से ज्यादा है
भाई दर्शन से पवित्र हो जाता है, गंगा तो स्नान के बाद होता है, तो भगवान कितना पवित्र होगा जहाँ रहा होगा, वो लिखा हुआ है। काफी लंबा तात्पर्य है, आप जीवा गोस्वामी का पढ़ के आनंद लीजिएगा, बहुत लंबा तात्पर्य है, बहुत से वर्ष कोट किए हुए हैं। ये पढ़ने जैसे तात्पर्य दोनों है, अपने को समय का अभाव है, आप ये पढ़ लीजिएगा। 48, हाँ लेकिन वो गंगा है, उसको गंगा ही कहते हैं ना, तो उसमें महाचैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया तो वो महान हो गई ना। अब ये श्लोक याद करने का होगा, देखो। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदो वर परिषत स्वै दौरभि असयन अधर्मम स्थिर चर व्रजनग्ना सोस्मित श्री मुखेन व्रजपुर वनिता न वर्धयन कामदेवम। ये चैतन्य महाप्रभु इसका उच्चारण करते हैं इस श्लोक का। Lord Sri Krishna is he who is known as Jana Nivas, the ultimate reserve of all living entities, and who is also known as Devaki Nandan or Yashoda Nandan, the son of Devaki and Yashoda. He is the guide of the Yadu dynasty, and with his mighty arms, he kills everything inauspicious, as well as every man who is inauspicious. By his presence, he destroyed all things inauspicious for all living entities, moving and inert. His beautiful smiling face always increased the lusty desires of gopis of Vrindavan. May he be all glorious and happy. If someone says, alas, alas, what misfortune that Krishna did not continue to manifest his intimate pastime down to the present time. To console such person, Sukdev Goswami has composed this beautiful verse. Living among human beings, Jana Manusheshu, such as cowards and Yadvas, Krishna remained the most glorious Jayati for him. जो ब्रजवासियों के बीच में और यादवों के बीच में रहे, ऐसे कृष्ण की जय हो. The word Jayati, victorious, means Krishna is eternally present in this world. He is in his holy abode, his holy name and the recitation of his glories. This is indicated by the word Jayati, which is in present tense rather than past. इसमें जयति जो है, तथा ये जयति हम भागवत के लिए भी कहते हैं, रोज रोज कहते हैं ना, भागवत की जय हो. नेक्स्ट प्रायशु में लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड का मतलब है उसके बाद कहो श्रीमद् भागवत की जय हो. तो ये जयति प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब भगवान आज भी अपने नाम के रूप में है, अपने वृंदावन धाम के रूप में है, द्वारका धाम के रूप में है, अपनी लीला के रूप में आज भी यहाँ है. One should not expect Sukdev to have used the imperative case Jayatu instead of Jayati. Because being Krishna's devotee, it would be improper for him to demand blessing from Krishna. All his desires were already fulfilled because Krishna's blessings are always available. Sukdev Goswami continued, it is definitely concluded that Krishna took birth from two, Devaki, the wife of Nanda, and Vasudev. क्योंकि नंद यशोदा का दूसरा नाम देवकी है. और ये कौन सी पुराण में लिखा है? हाँ देखिए, the wife of Nanda had two names, Yashoda and also Devaki. Therefore, it was natural that Yashoda, the wife of Nanda, developed friendship with Devaki, the wife of Sori. Sukdev himself has said conclusively that Krishna was born from both Devaki, Devakyam cha Yashodayam. Thus, though now, Sri Krishna himself stated, Vada Pravantam Aham, I am the natural conclusion of all the arguments. The word Vad also referred to philosophical theory, as in the Arambavad,
The theory of creation has no beginning. Parinamvad. The theory of creation emanates from the Supreme. Sukdev Goswami said, Krishna's eternal associates are best of the Yadu dynasty. Yadu were Parishat, some of whom were coward men in Vraj, and other were Kshatriyas. इसका क्या अर्थ है? ब्रजवासी भी यदुवंशी है, क्योंकि देवमीड महाराज यदुवंशी थे, उसकी एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे सुरसेन का जन्म हुआ, उससे वसुदेव हुआ। दूसरी वैश्य पत्नी थी जिससे पर्जन्य का जन्म हुआ, और पर्जन्य के 5 पुत्र हैं। तो इसलिए ब्रजवासी भी यदुवंशी है। तो यदुवंशी ब्रजवासी भी है और यदुवंशी द्वारकावासी भी। In Mathura and Dwarka, with his own arms or by his devotees like Arjun, who are just like his own arm, Krishna kills the demon opposing religion. Thus Krishna destroyed misery of the material life of all the non. ये हरि की डेफिनेशन है क्या? Vrjan sansar dukkham. Thus Krishna destroyed the misery of material life of all non-moving and moving entities and removed the suffering due to separation of inhabitant of Virgin Dwarka. With his blissful smiling face, Krishna, who is lust personified, Kamadev, Kamadevam, always increases the lusty desire, Vardhanam Kamadevam, of the damsels of Virja and city women of the Mathura and Dwarka, who are completely attracted to him. And the very Krishna remains eternally glorious Jayati. The transcendental Kamadev, God of love, is brilliant, a spiritual personality arising from Krishna's own internal spiritual nature. The word Devam in Kamadev means bright or spiritual. Thus Sukdev has stated that all the pastime occurring in Vraj, Mathura and Dwarka, which are described in the 10th canto, are eternal. Detailed dynasties of the eternal nature of the Krishna's pastime are thoroughly described with a logical reasoning in my commentary on Ujjwal Neelamani. And at the end of the 11th canto, it will be more elaborately commented under the topic of Krishna's disappearance. इंतजार करना। नहीं, ये विश्वनाथ जीवक को इस बार हम छोड़ के चल रहे हैं आपके पढ़ने के लिए। तो कमेंट्री उसके ऊपर की है, कमेंट्री भी की होगी ना? अरे ये भी बहुत लंबा है भाई, आप पढ़ लीजिएगा। जीवा गोस्वामी कमेंट्री भी ऑलमोस्ट 5-7 पेज है, और सनातन गोस्वामी भी 5-7 पेज है। वर्ष 49, इथम परस्य निजवरम रक्षयात लीला तनोस्तद अनरूप विडंबनानि कर्माणि कर्मक्षणानि यदुत्तमस्य शुरयादमुष्य पदयोर अनोव्रतम इच्छन्. To protect the principle of devotional service to himself, Lord Krishna, the best of the Yadavas, accept the pastime forms that have been glorified here in the Srimad Bhagavatam. One who desired to faithfully serve his lotus feet should hear of the activities he performed in each of these incarnations, activities that suitably imitate those of the forms he assumes. Hearing narration of these pastimes destroy the reaction of fruitive activity. ये श्रुति फल है. Having described that the pastime of Krishna is eternal, Sukdev Goswami prescribed hearing about them in this verse. How can it be described in verse 47? That all Krishna's eternal associate become situated in his exclusive abode. This is answered here that even those who merely listen, Shruyat, to the pastime of Krishna
enjoyed with his associate, will also attain eternal residence in his spiritual world. As previously described, the Supreme Lord Krishna manifests his personal form, Tano Nij Vigraha, in this material world in order to protect his own principle of religion, Nij Vartaman, namely devotional service. Sri Krishna appears simply out of his mercy, otherwise he remains imperceptible to everyone. One should hear about the pastime of Krishna's various incarnations, which displays activities befitting that particular avatar. Though these incarnations may appear to be engaged in inferior mundane activities, nevertheless one should hear about their pastimes, which actually display unequaled and unexcelled majesty. Such hearing will destroy reaction of karma kshanani, of the fruitive work. Last verse. Maratasya tasya no shavanam adhitaya mukanda Srimad Katha Sharavan Kirtana Chintayeti Tadadhama Dustara Kirtanat Jayavavaragam Granamadavanam Kshati Bhujopi Jayor Yada Artha. By regularly hearing, chanting and meditating on the beautiful topics of Lord Mukunda, with ever-increasing sincerity, a moral being will attain the divine kingdom of Lord, where the inviolable power of the death holds no sway. For this purpose, many persons, including great kings, burned down their mundane homes and took to the forest. For the Srimad Bhagavatam's 10th canto, this verse is Phalashruti, the promise of success. How can one attain the success of entering the spiritual world? By steadily hearing and chanting about the beautiful topics, Srimad Katha of Krishna. One will begin to meditate, Chintayati, on them and then start continuously Edhaya Varditya, thinking by that method will attain Krishna. And when? This verse states Krishna's abode is beyond the influence of time, since it destroys apavarganasha, the unavoidable force of death. One method of attaining Sri Krishna's eternal domain is mentioned beginning with the word Gramat, home. The phrase Kshati Bhuja, kings, implied that kings such as Swayambhu Manu and Priyavrta renounced their homes and kingdoms and went to the forest in search of Krishna. तो यहाँ हमारी अच्छा भी और है इसमें. The Sartha Darshani commentary on the 19th chapter of 10th canto has now gradually reached the completion. Okay. O Gopal, please accept and maintain the cows in the form of my words. Please experience the pleasure of personally drinking that milk and inspire others to do the same. By the mercy of the Lord, I completed this commentary on the 10th canto on 12th day, Dwadashi of dark fortnight of Magh, January, February, on the banks of Radha Kund. धन्यवाद जी. अब जो कुछ है आप पढ़ लेना, हमारी तरफ से पूरा हुआ. हरे कृष्णा. अब आपका कोई क्वेश्चन कमेंट है या कोई राय है आपकी या हमारे जूम वालों की? देवकी जन्यवासो वाला मेरे ख्याल में आपको याद करने का है, और 5 स्पेशल कृष्ण का पूरे 10th स्कंद से पिक्युलरिटीज है. जैसे हम 4 वो बोलते हैं, गोरूप माधुरी, ये 5 पूरे 10th कैंटो से इस विशेषता है जो और कहीं नहीं है.
आप में से किसी का क्वेश्चन है जूम वाले? ओके, somehow we have finished this. अब आपका कोई राय, कुछ जो आपने सुना है 5-6 दिन, उसमें कुछ सुझाव, कुछ राय है तो दीजिए। इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। माइक लीजिए, कुछ बोलिए, कुछ आपका अनुभव। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने ये बहुत ही विशेष सेक्शन लिया। तो हमारा एक ही दुख लग रहा है कि 10वां स्कंद खत्म होने का आपने खत्म किया उसको। तो शायद हमको लेट हो गया आपको यहाँ पर इसके लिए बुलाने के लिए कि 10वां स्कंद खत्म हो गया, लेकिन बहुत ही गहराई से आपने पूरे आचार्यों के कमेंट्री को समझा है। तो बहुत कृतज्ञ हूँ, शब्द नहीं है बताने के लिए। और बहुत सारे चीजें हैं जो कभी स्पष्ट नहीं हुई थी, कल्चरल, फिलोसॉफिकल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके यहाँ आने का, बहुत कृतज्ञ हूँ। प्रभु जी ने हमको पकड़ के बुला लिया, हम आ गए आपकी सेवा। और कोई किसी का कुछ कमेंट है, कुछ सलाह है? फास्ट गए, स्लो गए, कुछ ज्यादा बोल दिए, कम बोल दिए? हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी ने एक तो इतना दूर से आए प्रभु जी, और हमारे 10th कैंटो लेने के लिए इधर। और हम चाहते हैं कि प्रभु जी फ्यूचर में भी समय निकाल के अगर आएंगे तो और अच्छा रहेगा, और हमें सबको सुनने को मिलेगा प्रभु जी से। तो ये वैसे बहुत ही डिफिकल्ट था ये टॉपिक प्रभु जी खुद बोल रहे थे, जैसे कल बता रहे थे कि ये भाव वाला जो है ये हमारे लिए नहीं है। तो कल हम केवल पढ़ाई कर रहे थे तो वैसे 10th कैंटो पूरा भगवान कृष्ण का लीला है। शुरू में राधे शंभू ने लिया था 40 चैप्टर्स, बाद में अलग अलग स्पीकर्स ने लिया था, तो द्वारका लीला, मथुरा लीला, ये सभी। तो बट फिर भी ऐसा एहसास होता है कि हमें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अभी पूरा अंतसात नहीं हुआ है अंदर। तो ऐसे रियलाइज्ड स्पीकर से सुनने से, क्योंकि प्रभु जी के बहुत सारे भागवत क्लासेस होते रहते हैं, तो बहुत हमें लाभ मिलता है। सो वी गेट गुड बेनिफिट फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम प्रभु जी काइंड ऑफ स्पीकर्स। प्रभु जी ने बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी काफ़ी बताए। शुरू में कुछ, पहले लेक्चर में कुछ कहानियाँ भी बताई उन्होंने, हमारे कदम कान को बोल रहे थे वेरी नाइस स्टोरीज। कुछ स्टोरी आपने बताई तो मैं पहले क्लास में नहीं था, नॉट इन फर्स्ट क्लास। ही टोल्ड मी कि प्रभु जी ने बहुत अच्छा एक स्टोरी बताया था हाँ, तो ये तो देखने में लगा कि बहुत वास्ट था, बहुत वास्ट, बहुत बड़ा था सिलेबस। हाँ, और प्रभु जी ने बहुत लंबा होमवर्क दिया है पढ़ने को नीलकंठ के कमेंट्री, हरिवंश, ये सभी। इसमें 2-3 पढ़ा मैं, ये गोस्वामी के सनातन के छोड़े लास्ट में। और किसी का कुछ राय देना है तो कहीं तो गाइड भी करे। तो प्रभु जी हम हरे कृष्णा बोल के आपका धन्यवाद देंगे एक बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। हरे जूम कृष्णा। डिवोटी, जूम किसी को कोई जूम प्रश्न जूम है? जूम वालों का कुछ राय? ये सब अनम्यूट है। हाँ, यस प्रभु जी। कुछ सलाह किसी की? सम कमेंट? Hare Krishna, I'm Archu Vigradasi. Actually,
I had some guests, so I had to listen in between, like, but I was hankering for your association, Maharaj ji. Please keep coming and give your valued association, Prabhuji. दंडवत प्रणाम भैया। Thank you so much, Prabhuji. हरे Please कृष्णा। keep coming to bless us. प्रभुपाद की जय। वो जी आपका जो बस समझाने का तरीका था बहुत अच्छा था। बीच बीच में आपने जो ह्यूमर डाले थे वो वृंदरज वाला वृंदा मतलब कथा वाला जो ह्यूमर था, ऐसा कोई इधर उधर का नहीं था। जैसे मुझे वो स्टोरी अभी इतना याद हो गया हो कि जब आई थिंक समर्पण को उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, धन का सम्मान नहीं है, वो धन देने वाले के त्याग का सम्मान है। और उसके बाद में जो स्टोरी बताया कि साधु यहाँ पे जाके विष्टा पास करता है वो घर धनी बन जाता है। सो बहुत ही वो स्टोरी अभी जब भी दिन भर कभी भी जाते तो याद आता है स्टोरी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी शैली से आपने सब कुछ समझाया। आगे हमारा स्टेज करना पड़ रहा है, पूरा करने का होता है ना, पूरा नहीं करने का होता है तो आराम से आदमी बोलता है। प्रभु जी पहले हम विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री तो पढ़ते थे पहले भी, बट अभी आपने जिस तरीके से लघु भागवतामृत और जीव जीव लघु और दूसरा क्या वैष्णव तोषणी हाँ, सो ये दोनों जैसे आप पढ़े थे प्रभु जी, तो हमें काफ़ी उसमें टेस्ट लग गया कि मतलब अभी इनका भी रेगुलरली पढ़ना चाहिए करके। असल में क्या प्रभुपाद का कमेंट्री है नहीं, इसलिए हमारे को दूसरा सहारा लेना पड़ रहा है। हाँ यस श्लोकों की कमेंट्री है नहीं हमारे पास, तो 3 आचार्यों का सहारा लेके उसको बट समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग आप 95% के ऊपर ही सब पढ़ ले, एक एक करके पढ़ लिया। कुछ छोड़ना पड़ता है, क्या कर। समास और व्यास 2 प्रकार होते हैं, कुछ चीजों को विस्तार से, कुछ चीजों को शार्ट। यस यस, थैंक यू प्रभु। बोलते हैं कि ये भाई इसमें किसी का ज्यादा कमेंट्री लिखा नहीं है, ये मथुरा और द्वारका में, तो वो लोग बोलने के लिए आते नहीं है ये पार्ट में। ज्यादातर लोग वृंदावन लीला बोलते हैं, ये वाले पार्ट जनरली छोड़ देते हैं कई लोग। लेकिन हमारे सब आचार्यों ने लिखी है, देखो। हाँ इसमें तो लिखा है। तीनों ने लिखा है। वो भले वृंदावन लीला है, तो वहां भी लीला तो कृष्ण की ही है ना, और कृष्ण से संबंधित लीला है कहीं भी हो। तो गीता के ऊपर कमेंट्री भी सब आचार्यों ने लिखी है, वो तो वृंदावन की नहीं है। गीता के ऊपर कमेंट्री सब आचार्यों की पढ़ी है ना। कृष्ण संबंध, निर्बंध कृष्ण संबंध है, उन आचार्यों का दृष्टिकोण है, जो कृष्ण से संबंधित है वो सब हमारा है, नहीं तो हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ये पास टाइम भी अपनी जगह पे बहुत ऊपर के स्तर है, सब लोग तो राग अनुगम मार्ग के अधिकारी नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी। अभी नारद भी जब वैदिक साधन भक्ति का आचार्य है, नारद वैदिक साधन का आचार्य है, वैकुंठ उसका मेन गोल है, और तो द्वारका तो उससे भी ऊपर है। तो द्वारका की लीला का भी इतना वर्णन है भागवत में, तो उसका महत्व तो है अपनी जगह पे। हमारे कुछ आचार्य गए नहीं मथुरा या द्वारका, गए नहीं है वहां। लेकिन प्रभुपाद के जन्म से चैतन्य महाप्रभु के 500 साल में पदयात्रा द्वारका से शुरू की थी और मायापुर तक आई थी, और गेट बना हुआ है प्रभुपाद गेट द्वारका में। मतलब सिर्फ वृंदावन का लीला, ये 2 लीला का श्रवण करेंगे तो वृंदावन का महिमा भी वर्णित हो रहा है ना उधर। एक वैसे अप्रत्यक्ष जनरली ये ऐश्वर्य लीला है, ऐश्वर्य लीला से ही भगवान के प्रति आदर होता है, तब माधुर्य में जाना संभव है।
जैसे सृष्टि लीला है, ऐश्वर्य लीला है, वो सुनेंगे तो हमारे लिए उतनी वो महत्वपूर्ण है जितनी रास लीला है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो उस दृष्टि से सब आचार्यों ने प्रार्थना की है कि हम नहीं जानते हैं द्वारका की महर्षियां कृपा करें कि उनके भाव को हम प्रस्तुत कर सकें। वो राधा रानी का वो भी राधा रानी का प्रतिबिंब है, द्वारका की रानियां। रूपा गोस्वामी तो यहाँ तक लिखा है कि राधा रानी यहाँ से वहां जाके सत्यभामा बन गई और ललिता जाम्बवती बन गई। तो ये वही लीला उधर जाके नव वृंदावन बन गया। तो ऐसा भी दृष्टिकोण है आचार्यों का। आपका तो सीनियर ब्रह्मचारी अध्ययन करना आपका काम है, उसको प्रैक्टिकल ऑडियंस के अनुसार अप्लाई करना है। सब्जेक्ट यही है लेकिन ऑडियंस अलग है तो अलग तरीके से प्रकाशित करना पड़ेगा। मुख्य रूप से गृहस्थ धर्म का, क्योंकि हमारे कांग्रीगेशन ज्यादा है तो ये कृष्ण की लीला उनके लिए उदाहरण ज्यादा है। वृंदावन की लीला उनके बस की नहीं है, लेकिन ये तो उनके लिए है। ये तो गृहस्थों के लिए तो गृहस्थ धर्म का यहाँ अच्छा भगवान ने स्वयं ने जो है उदाहरण स्थापित किया है। धर्म की शिक्षा देना, उदाहरण बनना, संकीर्तन यज्ञ करना, दान देना, ये सब प्रैक्टिकल शिक्षाएं भगवान की है, स्वयं उदाहरण बने हैं। तो ये कांग्रीगेशन के लिए तो जरूरी है। चलो गायत्री करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद सबका जी।